Hello friends, welcome back to our channel Redefining Internal Audit. So in this video we will be talking about module 2 of CFE curriculum. Module 2 is about the law, and in the law sections we understand what are the different legal systems, what are the different court procedures, what are the different fact finding process. In case any of the situation arises when either our company has to approach to the court, or we as an fraud examiner may also have to approach to the court, or the fraudster, he may also be approaching to the court with any kind of the grievance, right? So in this chapter we'll be understanding the detail about the legal system of a country and how the legal system actually works in that particular country. So it may vary from country to country, so we'll be just having the overall understanding about the legal system. So the point which I am going to cover in this video is the fact finding process. When we say about the fact finding process, so let me just explain you about the what is known as fact finding process. So if the case is going to the court, then how the fact will be found, this point we have to understand. Means if we are going to the court and with the expectation of some kind of the grievance or some kind of the action against the fraudster, so as fraud is itself is a criminal activity, so obviously we will be filing a criminal case against the fraudster. So now the point is, who will collect the evidence, who will present the evidence, how the fight between two parties will happen in a court. So this is known as the fact finding process. So the point is that fact कैसे find किए जाएंगे, who will gather the fact, who will present the fact to the court, and how the facts will be considered in the court. So this is known as fact finding process. So my dear friend, whenever we say about the fact finding process, normally one thought always come in our mind is that, sir, इट इज़ वेरी सिंपल, हमने केस डाला है तो हम ही फैक्ट गैदर करेंगे और हम अपने अटॉर्नी को लेकर आएंगे, अटॉर्नी हमारे बिहाफ पे केस को कोर्ट में प्रेजेंट करेगा, एंड देन जज विल गिव द डिसीजन. दिस इज द नॉर्मल थॉट विच ऑलवेज कम्स इनटू अवर माइंड. बट जस्ट टू टेल यू, देर आर टू डिफरेंट methods, or we can say there are two different processes by which actually fact can be gathered by the court. So the two methods are the, so if I tell you, there are some situations when we, the person who is going to the court to file a case, we or our attorney means our lawyer who are representative of our for us, so we or our attorney will not gather the evidence and will not present it into the court. Sometimes judge also used to do all of this activity. So ultimately, one thing which we always know, number one, we collect the evidence, we present it to the court, and the judge will actually listen to both of the parties and will finally give the result. Second is, when we are not presenting the case, judge himself will collect the case and will collect the evidence and also present to the both of the parties and understand about how the practical situations are. So that is known as the this is also the second way of presenting the case, right? Of presenting the case, or we can say this is another way of finding the facts related to a case. So these are the two major processes. So when we say about one normal one, which we all know that when we both of the parties collect the evidence and present it to the court, that is known as adversarial process. Adversarial process, right? नाम थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन द मोमेंट 2-4 बार आप इस नाम को बोलोगे तो आपके भी अपने आप ही वो मुंह पे आ जाएगा. तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रोनाउंस एज वेल एंड ऑल्सो टू रिमेंबर इन योर माइंड, राइट? It is known as adversarial process. So adversarial process is a process in which all of the activities are done by the attorneys. Obviously you will not be doing, your attorney will be working on behalf of you. So every activity is done by the attorney, and
सेकेंड मेथड इज नोन एज इंक्यूजिटोरियल। ये नाम पहली बार जब मैंने भी सुना था तो मेरे लिए भी बड़ा अजीब सा था, पता नहीं कैसा नाम है, 4-5 बार तो मैं भूल ही जाता था इस नाम को बोलते कैसे हैं। सो ग्रेजुअली अगेन जैसे जैसे हम इसको अगेन बार बार रिपीट करेंगे, जब हमारे सामने बुक नहीं होगी तब भी हम सोचेंगे अरे कौन कौन सी 2 प्रोसेस होती थी फैक्ट फाइंडिंग की। सो एक तो याद आ जाएगा एडवर्सेरियल, दूसरा भूल जाएंगे, राइट। सो हमें याद नहीं रखना। आजकल जैसे आप याद रख सकते हो तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। सो A मीन्स एडवर्सेरियल, I means inquisitorial process, right? Inquisitorial process is a process in which judge used to collect all of the evidence and then understand all of the evidence and then give his verdict, right? So that is known as inquisitorial process. So जब भी हम बात करते हैं एडवर्सेरियल प्रोसेस की या इंक्विजिटोरियल प्रोसेस की, so हमें दोनों के बीच में थोड़ी सी क्लियर कट डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। So पहला पॉइंट तो हमें समझ आ गया कि अगर हम बात करते हैं, चलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। तो अगर हम इसके अंदर मान लेते हैं कि हमने पहला सेक्शन बना लिया एरियाज़ के लिए और फिर हम दोनों अलग अलग बात करेंगे एडवर्सेरियल प्रोसेस में क्या होता है और इंक्विजिटोरियल प्रोसेस में क्या होता है, राइट। सो जैसे हमने पहली बात करी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट की बात करी, दैट इज गैदर एंड प्रेजेंट एविडेंस, राइट। गैदर एंड प्रेजेंट एविडेंस। सो फर्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी समझ ही लिया है कि एडवर्सेरियल प्रोसेस में कौन करेगा, अटॉर्नीज करेंगे। कौन करेंगे, अटॉर्नीज करेंगे। अटॉर्नीज विल कलेक्ट एंड विल प्रेजेंट द ऑल ऑफ द एविडेंसेस। इधर कौन करेगा, जज हिमसेल्फ, राइट। जज खुद ही अपने आप में जो है सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट करेंगे और डिसीजन देंगे। सो आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों होगा, क्यों जज की क्या जरूरत है, कैसे कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब जज को खुद जो है ऐसे अपने आप एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं। सो नॉर्मली माय डियर फ्रेंड, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन ऑब्वियसली एडवोकेट्स ही, अटॉर्नीज ही सब कुछ जो है एविडेंस कलेक्ट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। बट सम टाइम अगर कभी ऐसी सिचुएशन लगती है कि केस इज़ वेरी क्रिटिकल इन नेचर, सो उसमें भी क्या होगा, तो जज को लगता है कि नहीं, दोनों पार्टी ये बाइज्ड हैं या फिर कैपेबल नहीं हैं कोई एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, तो उस समय जज को अगर लगता है तो वो खुद उस प्रोसेस में आ जाते हैं। वो एडवर्सेरियल प्रोसेस को इंक्विजिटोरियल प्रोसेस में चेंज कर देते हैं उस केस को, और फिर वो इंक्विजिटोरियल प्रोसेस होने की वजह से वो खुद अपने आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। तो सर फिर क्या जज जाएगा किसी के घर पे फ़ोटो खींचने, एविडेंस लेने, कोई डॉक्यूमेंट लेने? नो, जज तो नहीं जाएगा। बट द पॉइंट हियर इज़ दैट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी अब एडवर्सेरियल प्रोसेस होता है तो जज को कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना होता, राइट। जज सिर्फ बैठेगा और सुनेगा, चाहे उसको 4 चीज़ों का और भी पता हो, लेकिन वो कभी भी उन चीज़ों को कंसीडर नहीं करेगा अपनी वर्डिक्ट सुनाते हुए। सो वो सिर्फ और सिर्फ वट एवर द एविडेंस द बोथ ऑफ द पार्टीज हैज़ प्रेजेंटेड, he will be considering only and only those evidences, and basis those evidence judge will be giving the decision. Understood? So अगर एक पार्टी ने बोला कि ऐसा हुआ है, these are the 2 evidence, another पार्टी ने बोला नहीं सर ऐसा तो नहीं हुआ, these are the we have the 3 more evidences. So उन 5 एविडेंस को ही वो अंडरस्टैंड करेगा। उसके अलावा हो सकता है कि 6th एविडेंस जज के माइंड में हो, लेकिन जज फिर भी जो है उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि यही एक लीगल सिस्टम का वे है, एडवर्सेरियल प्रोसेस है। वट एवर द डॉक्यूमेंट, वट एवर द एविडेंस विच आर प्रोवाइडेड, विच आर प्रेजेंटेड बाय द अटॉर्नीज और बोथ ऑफ द पार्टीज, दूज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज टू गिव एनी काइंड ऑफ द रिजल्ट, राइट। तो ये एडवर्सेरियल में होता है। इंक्विजिटोरियल में क्या होगा, यहाँ पर जज अपना दिमाग लगा सकता है। अगर जज को कहीं पे लगता है कि एक आध चीज़ और भी कोई है जो इस केस के अंदर देखनी चाहिए, सो ही विल बी डायरेक्टिंग, जस्ट फोकस ऑन माय पॉइंट, ही विल बी डायरेक्टिंग रेलिवेंट अथॉरिटी टू कम विद दैट काइंड ऑफ द एविडेंस। जैसे उसे लगता है कि सीबीआई को बुलाना है, तो वो सीबीआई को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप जाइए और पता करके आइए। वो सेबी को बोल सकता है कि ये सेबी आप जाइए और ये इस चीज़ की डिटेल पता करके आइए। पुलिस अथॉरिटी को बोल सकता है कि आप जाइए उस पर्सन की लोकेशन ट्रैक कीजिए। कुछ भी किसी भी वे से ही कैन इंस्ट्रक्ट द अदर अथॉरिटीज टू कम अप विद सर्टेन काइंड ऑफ द एविडेंस।
सो पॉइंट क्लियर है। एडवर्सेरियल प्रोसेस में जज को अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आप दोगे वही वो कंसीडर करेगा। यहाँ पर दोनों पार्टीज होंगे, दोनों पार्टीज के अटॉर्नीज होंगे, इनको अपना दिमाग नहीं लगाना है, इन्होंने अपना केस फाइल कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पर जज दोनों पार्टीज से को बोलेगा कि आप ये लेकर आइए, आप ये लेकर आइए, और हो सकता है ही कैन इंस्ट्रक्ट other authorities also to come up with certain kind of the documents, evidence, details or something like that, right? So this is known as adversarial inquisitorial process। एक बहुत ही अच्छा आपको मैं इंसिडेंस याद कराता हूँ जहाँ पर एडवर्सेरियल प्रोसेस हुआ। आप सबने वो मूवी तो देखी होगी जोली LLB 2, तो उसके अंदर जज साहब क्या बोलते हैं? जज साहब ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है। जज को सब पता होता है, लेकिन अपना डिसीजन वो आपके प्रेजेंट किए हुए एविडेंस पर ही दे सकता है। सो आप लेकर आइए ढूंढ के एविडेंस, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कोई एविडेंस लाओगे नहीं तो मेरा डिसीजन मेरी सोच से नहीं हो सकता। तो जो भी एविडेंस आप दोगे उसको मैं लीगली एनालाइज करके अपना वर्डिक्ट सुना दूंगा, राइट? सो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर एडवर्सेरियल प्रोसेस, राइट? सो द पहला डिफरेंस हमने पढ़ा दैट हु विल गैदर एंड हु विल प्रेजेंट द एविडेंसेस। सो अब दूसरा एक चीज़ हमारे माइंड में फिर से आती है कि सर इस केस में अगर इंक्विजिटोरियल प्रोसेस है, जज को ही सब कुछ करना है, तो हमारे अटॉर्नीज क्या करेंगे? वेरी गुड पॉइंट। तो सेकंड हम बात करते हैं रोल ऑफ अटॉर्नीज, राइट? रोल ऑफ अटॉर्नीज। सो अटॉर्नीज का रोल यहाँ पर क्या है? मेजर रोल है, राइट? बिकॉज हर चीज़ उन्होंने प्रेजेंट करनी है, हर चीज़ उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करने हैं और देना है। यहाँ पर उनका नॉमिनल रोल है, यहाँ पर उनका नॉमिनल रोल है, राइट? अगर कुछ जज बोलता है कि आप जाइए और ये पता कीजिए, सभी हो सकता है, अदरवाइज वो तो सिर्फ बैठे हैं और सुन रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, राइट? कोई किस तरफ जा रहा है, जज किन किन चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो उन केसेस में यहाँ पर जज का इतना ज़्यादा रोल, अटॉर्नीज का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, राइट? तीसरी जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दैट इज एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ कोर्ट, एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ कोर्ट। अभी जब हमने बोला एडवर्सेरियल में तो कोर्ट तो कोई एविडेंस लेकर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अपना प्रेजेंट ही नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो नहीं होगा, राइट? यहाँ पर नॉर्मली वो नहीं होगा। तो मैं लिख रहा हूँ जनरली नो, और यहाँ पर ऑलवेज क्या होता है? यस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज यस। मैंने यहाँ पे लिखा जनरली नो। सो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगर फिर भी कभी लगता है तो वो मंगवा सकता है, राइट? नॉर्मली इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एडवर्सेरियल प्रोसेस कोर्ट के बिहाफ पे कोई भी एविडेंस नहीं होता है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आता है कि कब कब एडवर्सेरियल प्रोसेस यूज होती है, कब कब इंक्विजिटोरियल प्रोसेस यूज होती है। सो जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू इज दैट नॉर्मली जो हमारे दो कोर्ट सिस्टम्स होते हैं, जब भी हम कोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास दो तरह की नॉर्मली कोर्ट सिस्टम होते हैं, लीगल सिस्टम्स होते हैं, कॉमन लॉ सिस्टम होता है और सिविल लॉ सिस्टम होता है। सो सिविल लॉ सिस्टम, कॉमन लॉ सिस्टम, दोनों ही केसेस में दोनों पाए जाते हैं, बट अगेन मेजोरिटी की अगर हम बात करें, जनरली की बात करते हैं, तो वहाँ पर डिवीज़न है। तो जब हम बात करते हैं एडवर्सेरियल प्रोसेस की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लीगल सिस्टम कौन सा फॉलो होगा, लीगल सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि किस लीगल सिस्टम में कौन से वाली प्रोसेस जनरली यूज होती है, राइट? सो हम बात करते हैं लीगल सिस्टम की। अगेन मैं बात कर रहा हूँ जनरली, मैं स्पेशली लिख रहा हूँ, इट डजंट मीन कि दूसरे वाली सिस्टम में ऐसा यूज नहीं होता है। नॉर्मली जो है एडवर्सेरियल प्रोसेस जो यूज होता है दैट इज यूज्ड इन कॉमन लॉ सिस्टम, कॉमन लॉ सिस्टम, राइट? और इंक्विजिटोरियल प्रोसेस नॉर्मली यूज होता है सिविल लॉ सिस्टम, civil law system, right? So two types of system are there, civil law systems, common law systems. Adversarial process normally generally found in common law system, sometime maybe in civil law system as well, and inquisitorial process normally used in civil law system, sometime in common law system as well, right? So जब हम पेपर में क्वेश्चन की बात करते हैं, पेपर में ऐसे ही आएगा, in which of the following legal system inquisitorial process normally or generally uses? So we will say in the civil law system, right? क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, adversarial process can never be used in common law system. नेवर आ गया, हमने नेवर की बात नहीं करी। हो सकता है कि ऐसा हो,
बट जनरली सिविल लॉ में होता है, कॉमन लॉ में नहीं होता है, बट हो सकता है। मस्ट नहीं आना चाहिए, अगर मस्ट आ गया तो फिर आंसर फॉल्स हो जाएगा, राइट। क्लियर। इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एडवर्सेरियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम, बोथ ऑफ दिस टू प्रोसेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड to proceed with the law section. तो my dear friend, to understand the entire law section, हमें inquisitorial और adversarial process के बारे में clear cut understanding होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हम चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। जितने भी पूरे लॉ सेक्शन के अंदर चैप्टर होंगे, हर चैप्टर के अंदर लगभग हर कंसेप्ट के अंदर एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल के बारे में बात करी जाएगी और वहाँ पर आपको समझाया नहीं जाएगा। दे विल बी जस्ट सेइंग ओके दिस हैपन्स इन एडवर्सेरियल सिस्टम। सो जब भी हमारे माइंड में बात आती है एडवर्सेरियल मतलब यस अटॉर्नीज का काम है, हमारा काम है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम मतलब जज का काम है, हमारा काम नहीं है। तो पहले हमने क्या देखा है, पहले नॉर्मली आज तक हमें क्या पता था कि हमारा रोल होता है, अटॉर्नीज का रोल होता है। तो ए आई, अब ए पहले आता है कि आई पहले आता है, ए पहले आता है, राइट। तो इस तरीके से कुछ एक हमें माइंड में रखना होगा। ए आई हमने रखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए पहले आता है इन द अल्फ़ाबेट्स। तो पहले क्या होता था, या जो हमें पहले क्या पता था, लॉ अटॉर्नीज प्रेजेंट करते हैं एडवर्सेरियल सिस्टम। आई नया पता चला हमें, इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस भी बढ़ गई आज, राइट। सो आई मीन्स वेयर दिस जज यूज टू फाइंड आउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो दीज आर द प्राइमरली 4 डिफरेंसेस इन गैदरिंग एंड प्रेजेंटिंग द एविडेंसेस, role of attorneys, evidence on behalf of court, and legal system, in which of the legal system these kind of processes are used, right. So there are some other differences also, but gradually the moment we will proceed to the other chapters, we will be able to understand the other differences between adversarial process and inquisitorial process. If we will be talking about those points here, so that you will not be getting those points, because the moment we will understand more and more, we will be talking about the criminal justice system, we will be talking about civil justice system, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, ब्ला ब्ला। द मोमेंट विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोज कंसेप्ट्स, तो आपको समझ आएगा कि इस एडवर्सरियल में क्या होता है और इंक्विजिटोरियल में क्या होता है, राइट। इतना हमको ध्यान से समझना है, राइट। सो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो जस्ट यहाँ पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना लिख सकते हैं, और अदरवाइज इफ़ यू कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो यू कैन बी इन टच विद अस। आवर व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ 9311320114, right. We will be happy to answer your queries, and that's all for this video. See you in the next video. Thank you so much. Bye bye.